Hello to all the student of MCOM first year. I am Professor Sonia Digwatia. Welcome to all of you student of MCOM first year in my YouTube channel. Today we taking about our online lecture of the subject is income tax, which can be stated of your specialization. As per your specialization, I have tell you about in last lecture we discussed about the syllabus of our two subject which can be stated in a group student for the specialization of a group. In last two lecture we have discussed about the syllabus of income tax first, and in second lecture we have discussed about the syllabus of advanced accounting. So in this lecture, in third hour lecture, we have discussed about and started our first chapter, which can be depend upon the subject of income tax. Move forward to a next slide. In next slide, the subject of income tax. In this subject you have to study the fourth subject. First of all, the first chapter of that we have now started. So the name of first chapter will be concepts and definition. Concept of definition. In this chapter you have to learn about the different concept which have been stated under the income tax. What is the meaning of income tax, why income tax is formed, whether the income tax is needed in our country, and what kind of income tax will plays an important role in our day to day activities, or whether you utilize the position, why income tax is needed, and the section of income tax as per the section, which income will be charged under which section, subsection. So in this chapter you have discussed about that concept, and you have to learn those concept which have related to the income tax. Okay, so move forward to next slide. The content which you have to study in this chapter. Okay, in this slide the content have been mentioned in first chapter. First of all, I tell you one more think that फर्स्ट चैप्टर विल बी डिपेंडेड ऑन टोटली थियोरटिकल. ये फर्स्ट चैप्टर आपको टोटली थियोरटिकल बेस्ड रहेगा. इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. ओनली द थियोरटिकल पार्ट यू हैव टू स्टडी इन दिस फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे द डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इनकम. सो इनकम्स क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड व्हाई इनकम इज़ नीडेड फॉर अ सोसाइटी एंड ओके. सो फर्स्ट आई विल रीड द कंसेप्ट. ये सारे कंसेप्ट जो आपको इस स्लाइड में मेंशन करे गए हैं, in this slide the all the content have been mentioned, you have to study in this chapter. Okay, so all the contents जो भी यहाँ मेंशन है, ये कंटेंट्स आप लोगों को डिटेल हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फर्स्टली कंटेंट है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया मतलब इनकम टैक्स कब फॉर्म हुआ था, तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है. इंट्रोडक्शन अबाउट द इनकम टैक्स. इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को क्या सीखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स. थर्ड विल बी difference between of direct and indirect taxes. what kind of डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट कौन कौन से हैं. डायरेक्ट टैक्स विल बी द टैक्स विल कैन बी डायरेक्टली चार्जब बाय under the rules and regulation which have been regulated by the government. Or indirect tax will also charge, but indirect tax will be different and direct tax will be different, and direct tax item will be different and indirect tax item will be different. So in this difference between we have discussed about what is the meaning of direct tax and what is the meaning of indirect tax. Fourth concept will be fundamental concepts and definition under income tax एक्ट 1961. ओके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंतर्गत, कौन कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है, उनकी डेफिनेशन है, उनके टैक्स है, उनके सेक्शन जो भी रहेंगे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स के अंतर्गत चार्ज करे जाते हैं या इनकम टैक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हाँ कौन कौन से आएंगे. असीसी है, पर्सन है, असिसमेंट ईयर है. तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंतर्गत ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग
स्टडी करेंगे. ओके, नेक्स्ट विल बी रेट्स ऑफ टैक्सेस. ओके, सो रेट्स ऑफ टैक्सेस में वी हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट काइंड ऑफ यानी कि कितने आइटम्स पे कितनी लिमिट दी गई है, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ परसेंटेज चार्ज होगा. इफ़ सपोज 2,50,000 है द लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट एंड अप टू द लिमिट एंड द मैक्सिमम, मिनिमम लिमिट 2,50,000 है ना, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, तो उसके अंतर्गत कितना रेट ऑफ परसेंटेज चार्ज होगा. तो रेट ऑफ टैक्सेस में हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. एंड करंटली रेट current in this year. Okay, so rate of taxes will be charging according to the current year. Okay, so ये हम देखेंगे. next will be basis of charges. बेसिस ऑफ चार्जेस में कि किस किस आइटम पे कितने परसेंटेज ऑफ चार्जेस अमाउंट है. बेसिक चार्ज क्या है कि ड्यू बेसिस और करंट बेसिस. ड्यू बेसिस और अक्रूवल बेसिस. ड्यू बेसिस मतलब जो प्रीवियस ईयर कितना अमाउंट चार्ज किया गया है, और अक्रूवल बेसिस. बेसिस ऑफ चार्जेस में हम दो टाइप्स देखेंगे, अक्रूवल बेसिस एंड अ ड्यू बेसिस. ओके, सो ये डिटेलली हम लोग एक्सप्लेन, आप आई हैव गिवन यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑफ दैट. एंड सेवेंथ विल बी, seventh concept we have to study the residential status. In residential status you have to classify the person who live in India or in outside India or a ordinary resident. ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग क्या देखेंगे, द पर्सन हु विल बी स्टेज इन इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया और ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये हम इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे. जो व्यक्ति इंडिया में रहता है, जो व्यक्ति आउटसाइड द कंट्री रहता है, तो उसका हम लोग उनके यानी कि क्या इनकम टैक्स के अंतर्गत वो टैक्स कितना पेड अप करेंगे, और उनकी जो लिमिट क्या है क्या नहीं है, टैक्स पेड अप लिमिट, ये हम लोग इसमें देखेंगे इन आर रेसिडेंशियल स्टेटस में. मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. सो जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे विल बी द स्कोप of total income. Total income means what, and the last income assumed from taxes and capital revenue. इनकम अजम फ्रॉम टैक्सेस, जो यानी कि किसी सपोज किसी पर्टिकुलर आइटम्स पे पर्टिकुलर एंट्री पे अमाउंट चार्ज अप किया गया है. जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को लास्ट सिलेबस के कंटेंट्स में भी मेंशन किया था दैट ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है. ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यानी कि कंपनी अपने स्टाफ को मेंशन देती है या किसी भी व्यक्ति को देती है, स्टाफ को अपने देती है पर्टिकुलरली, तो उस पर इनकम टैक्स अजम्प्ट अमाउंट क्या चार्ज करता है कि वो कंपनी दे हैव बीन अजम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस. सो दैट अमाउंट इज़ टोटली अजम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस. वो हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से एंट्रीज हैं. एंड लास्टली कैपिटल एंड रेवेन्यू. कैपिटल मीन्स वॉट और रेवेन्यू मीन्स वॉट, ये हम लोग कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत डिटेलली वी हैव टू डिस्कस. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. So these are the contents, the 9 concept we have to discuss and learn in this first chapter. So 9 contents हैं. 9 contents means 9 concept हैं जो आप लोगों को डिटेलली स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. So what is the introduction of income tax? We have to read. First of all I will read. Income tax is a tax on income. According to the Constitution of India, income tax is a central subject of income tax on all types of income other than the agriculture income is charged and collected by the central government. ओके, तो इनकम टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन इनकम. इनकम टैक्स किसके अंतर्गत चार्ज करा जाता है, इनकम के ऊपर. इनकम टैक्स किसके अंतर्गत, दे हैव बीन चार्ज, दे हैव बीन टैक्स रिलेटेड टू all other incomes or the incomes which have been we have earning our day to day life or which can be calculated as per in salary, profession, रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज ऑफ इनकम. सो ये जो इनकम्स हम लोग डे टू डे अर्न करते हैं एज़ पर आवर प्रोफेशन, एज़ पर आवर सैलरी, एज़ पर आवर गेन, तो ये जो इनकम्स है इन्हीं इनकम्स के ऊपरगत इनकम टैक्स चार्ज करती है विच कैन बी गवर्नमेंट. तो वो इनकम टैक्स कौन चार्ज करती है, कलेक्ट करती है फ्रॉम द CC or from the person who have a salaried, who have occupied their houses, who have been stated collected from income from other resources. तो इनके
अंतर्गत जो इनकम पर्सन अर्न करता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो उसी के वो ही उनकी इनकम हैज़ पर चार्जेस tax, or that tax will can be paid up by or collected by the central गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो जो स्टेट की इनकम यानी कि कोई भी पर्टिकुलरली दे हैव बीन चार्जेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विच कैन बी रेगुलेटेड अंडर द गवर्नमेंट. ओके, अवर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया द इनकम टैक्स विल बी चार्जेस ऑन इनकम. सो अगर इंडिया हो या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, इनकम टैक्स चार्ज किस पे करा जाता है? द थोज हु हैव बीन अर्निंग एन इनकम, जो अर्न करते हैं इनकम एंड दे कैन बी एबल टू पेड अप टैक्स. जो अर्न करता है वो एबल है टू पेड अ टैक्स, तो ओनली इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलरली इनकम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अवर ऑफ इंडिया. और वो इनकम कौन कलेक्ट करती है? इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? फ्रॉम द असीसी, फ्रॉम द सैलरी रेट, फ्रॉम द हाउस रेंट पर्पज, दे कैन बी कलेक्टेड एज पर अ टैक्स. तो उनसे वो टैक्स के मात्रा में कलेक्ट करते हैं और उस टैक्स को क्या कहा जाता है? इनकम टैक्स, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. एंड दैट टैक्स विल कैन बी रन फ्रॉम आवर स्टेटस activities. Okay, so this is the introduction of the income tax which we have to analyze properly. The central government will be charges. अगर हम लोग ऑल अदर इनकम्स देखें, एग्रीकल्चर इनकम इज़ डायरेक्टली, एग्रीकल्चर की जो इनकम है, जो डे टू डे एग्रीकल्चर जो काम करते हैं, एग्री फार्मर्स हैं, उनकी जो इनकम है वो डायरेक्टली बाय कैलकुलेटेड एंड चार्ज, उनका जो डायरेक्टली टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है? दे हैव बीन कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो इतने कॉन्सेप्ट है वी हैव टू डिस्कस. नेक्स्ट पैरा, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू force with the effect of 1st April 1962. It applies to the whole of India including Jammu and Kashmir. ओके, इनकम टैक्स एक्ट कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंतर्गत और सारी की सारी कंट्रीज़ में? इन इंडिया द इनकम टैक्स एक्ट विल बी लॉन्च इन द ईयर 1961. 1961 में ये इनकम टैक्स जो एक्ट है उसको अडॉप्ट किया गया था और इस दे हैव बीन अडॉप्टेड एंड दैट इफेक्ट, और ये इस पे लागू इनकम टैक्स एक्ट को अपॉइंट कब किया गया था? एस्टैब्लिश कब किया गया था इनकम टैक्स एक्ट को? 1961 में. पर जो लागू किया गया था और इसके अंतर्गत जब हमने घोषणा करी थी, तो ये एक्ट कब फोर्स करा गया? इस एक्ट के ऊपरगत सब लोगों ने कब से काम करना स्टार्ट करा? इन द ईयर ऑफ 1962. 1 अप्रैल 1962 के अंतर्गत ये एक्ट को फोर्स किया गया. एक्सेप्ट इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में के अंतर्गत भी यही एक्ट लागू है, इनकम टैक्स एक्ट 1961. बट 1961 में ये एक्ट एक्स्टेब्लिश किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट. बट ये फोर्सफुली कब यानी कि अटेम्प्ट हुआ? इसकी एक्टिविटी जो इस एक्ट के अंतर्गत एक्टिविटीज़ थे, डिडक्शन थे, अजम्पशंस अमाउंट थे रिलेटेड टू टैक्स के, चार्जेस लिमिट थी, तो ये सब कब फोर्स में आना स्टार्ट हुआ? आइना 1 अप्रैल 1962 के अंतर्गत. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड. मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्या करेंगे? सिंस द अमेंडमेंट ऑफ फार रीचिंग नेचर हैव बीन मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ एवरी ईयर. सो इनकम टैक्स एक्ट किसके अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत चार्जेबल होता है? एज पर द फाइनेंस एक्ट ऑन द ईयर ऑफ 1961. और ये कब एक्ट फोर्स में आया? विद इन, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा, द एक्ट विल बी अमेंडेड in 1961, but the act which can be forced in the year of 1962, more than 57 years of existence. 57 ईयर्स के इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस होने के बावजूद 57 ईयर बिफोर इनकम टैक्स एक्ट लॉन्च हुआ था. बट इन इंडिया दिस एक्ट विल बी अपॉइंटेड, एस्टेब्लिश और एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ 1961. तो 1961 के अंतर्गत वो उन्होंने ये एक्ट को अडॉप्ट किया और इस एक्ट के ऊपरगत उन्होंने
लागू इस एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया 1961 में, बट इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने काम करना कब स्टार्ट किया, 1962 के अंतर्गत। इस एक्ट के ऊपर उन्होंने काम करना कब से स्टार्ट करा, आफ्टर अ 1 ईयर on 1st April 1962. So this is the history and the introduction of income tax act. Now we move forward to a next slide. In next slide, the direct or tax. टैक्स में टैक्स कैन बी, इस स्लाइड के अंतर्गत आपको मेंशन करा गया है एक टैक्स का चार्जेबल रेट, कि टैक्स किन किन आइटम्स पे चार्जेबल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। सो टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सो ओके, फर्स्ट टैक्स कब लॉन्च हुआ, 1961 में, बट टैक्स लॉन्च हुआ 1961 में, बट टैक्स को अडॉप्ट किया गया इनकम टैक्स एक्ट को 1961 में, बट उसे फोर्सफुली कब उसको लागू किया गया एकदम प्रॉपरली, दे कैन बी असेसमेंट ऑन द ईयर ऑफ 1962. Okay, so in taxes, the tax will be divided into 2 categories. First will be direct tax, second will indirect tax. So direct tax क्या है? The direct tax will be chargeable on the directly by the government. So direct tax क्या है? Will be directly charged by the government on the income. Okay, direct tax 2 categories में divided है, which can be income tax or a wealth tax. Income tax or a wealth tax. Income tax which can be directly collected from the government, and wealth tax which can be directly collected by the government will on the wealth of the particular merchant businessman. ओके, सो द प्रॉफिट तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स चार्ज होगी, जो इनकम पर्टिकुलरली बहुत मोस्ट कंसिडरेबल इनकम है, पर्टिकुलरली जो सारी इनकम टैक्सेस हैं तो उनके अंतर्गत ये लागू होगी वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जो पर्टिकुलरली वैट टैक्स है, जो पर्टिकुलरली आइटम से पहले चार्जेबल करा जाता था, नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में एक और इंक्लूड होगा है, इस स्लाइड्स के अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक और लॉन्च हुआ है डायरेक्टली। नाउ फर्स्ट इज़ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी एक्साइज ड्यूटी करते हैं, तो उनके दे हैव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये जो अंतर्गत काम करते हैं उनके चार्जेस पेड करने पड़े। वैट टैक्स विल बी चार्ज इन बिफोर। वैट टैक्स बिफोर चार्ज करा जाता था, आज के जनरेशन में द वैट टैक्स विल नॉट बीन चार्ज। वैट टैक्स विल बी रिप्लेस बाय द सर्विस टैक्स। ओके, वैट टैक्स भी चार्ज, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स पे चार्जेबल करा जाता है। सर्विस टैक्स जो यानी कि पर्टिकुलरली कस्टमर्स और जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर्स को, या कंपनी है जो अपने सर्विस प्रोवाइड करती है या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कोई भी सर्विस, तो उस सर्विस का चार्जेबल करा जाता है एज एन सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी विल बी चार्जेड ऑन द कस्टम ड्यूटी विच हैड बीन स्टेटेड। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, और इन डायरेक्ट टैक्स में एक और टैक्स इंक्लूड हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस स्लाइड में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेंशन नहीं किया गया है। ओके, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या है, द इनकम टैक्स comprise the Income Tax Act 1961 according to the rules and regulation of 1962, the notification circular issued by the CBDT। CBDT का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि इन फर्स्ट इंट्रोडक्शन वी हैव डिस्कस के हाँ, इनकम टैक्स एक्ट लॉन्च कब हुआ था, एक्स्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स लॉन्च हुआ था। बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर्स है, प्रोसीजर्स हैं, अमेंडमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो कौन से ईयर में लॉन्च फॉलो अप करे गए इन द ईयर ऑफ 1962, विच कैन बी इशू, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, in the year of 1962, that notification circular procedure can be issued by the CBDT Act. CBDT Act means CBDT means Central Board of Direct
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विल बी इशू द नोटिफिकेशन सर्कुलर प्रोसीजर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स रिलेटेड टू द इनकम। सो ये सारे सर्कुलर्स कौन से ईयर में लॉन्च हुए थे? इन द ईयर, और अमेंडमेंट फॉलो अप करे गए थे इन द ईयर ऑफ 1962, विच कैन बी इशू बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली टैक्स को चार्ज अप करेंगे। सो उन्होंने ये लॉस को सर्कुलर इशू करे गए। एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और एनुअल फाइनेंस एक्ट और जो प्रोनाउंसमेंट जुडिशियल एक्ट है, तो उनकी विद द सीबीडीटी है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमिशन ली थी किसके, जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करने के लिए रिगार्डिंग द इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी किससे परमिशन ली? दे हैव टू टेकन अ परमिशन विद द सुप्रीम कोर्ट and the High Court of India. Okay, let's move forward to our next slide. In next slide we have discussed about the scope of the Income Tax Act. The scope of Income Tax Act. Okay, the Income Tax Act 1961 is applicable to whole India, including Jammu and Kashmir. जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब से इंडिया के अंतर्गत कब से लागू है? 1961 के अंतर्गत। और ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर भी फॉलो अप करते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत इनकम कौन किन चीज़ों पे कवर अप करी जाती है, और इनकम टैक्स का एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ है इन प्रॉपरली आवर कंट्री और जम्मू कश्मीर को। तो क्या क्या है? ओके, इनकम टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो इस एक्ट ने प्रॉपरली उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कवर अप किया है प्रॉपरली। फर्स्ट है बेसिक्स ऑन चार्ज इन इनकम। बेसिस ऑफ चार्ज इन इनकम कि इनकम है उनके ऊपर बेसिक अमाउंट कितना रहेगा और चार्जेस किस तरीके से इनकम उनकी पर्टिकुलर आइटम पे चार्जेस होगी। सेकेंडली, इनकम अजम फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम विच कैन बी अजम फ्रॉम इनकम टैक्स। ओके, जिन जिन आइटम से, पर्टिकुलर आइटम्स पे हम इनकम चार्ज कर रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट इनकम है हमारी, यूनिफॉर्म इनकम है, तो ये पर्टिकुलर। और जो इनकम्स है हमारी, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस है, तो इनके ऊपर हम लोग इनकम चार्ज कर रहे हैं। ओके, कैलकुलेट कर रहे हैं इनकी इनकम को एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट के तहत। पर इन इनकम पे जितना हम लोग इनकम चार्ज करते हैं, तो इनकी अजम्प्ट इनकम कितनी है, इनका परसेंटेज है, तो वो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत अजम्प्ट अमाउंट मेंशन क्लियरली किया गया है। थर्ड, कंपटीशन ऑफ इनकम एंड वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। कंपटीशन ऑफ इनकम मतलब इनकम टैक्स के अंतर्गत ही ये सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम मतलब जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, पर्टिकुलरली सारी इनकम जिनके ऊपर इनकम चार्जेबल होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये बिजनेस, प्रोफेशन और अदर रिसोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, तो इनका हम प्रॉपरली इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रॉपरली इनका अकाउंट्स मेंशन किया गया है। रिलेटेड टू इनके अकाउंट्स मेंशन करे गए हैं कि किन इन अकाउंट्स को, इनको किस तरीके से फॉलो अप करना है, इनका अकाउंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। तो कंपटीशन ऑफ इनकम एंड अदर हेड्स ऑफ इनकम का किस तरीके से इनका अकाउंट्स को पर्टिकुलरली प्रिपेयर करना है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट, एंट्री, अजम्प्ट, लेस, डिडक्शन, सेक्शन, अजम्प्ट अमाउंट, तो क्लियरली वो अमाउंट सेक्शन मेंशन करे गए हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो ये इन चीज़ों को प्रॉपरली कवर अप करता है इनकम टैक्स एक्ट। फोर्थ, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम, तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम इफ पर्टिकुलरली इनकम ऑफ अ पर्सन, सैलरीड पर्सन, एंड इफ दे हैव नॉट एबल टू गेन आफ्टर रिटायरमेंट। क्लबिंग ऑफ इनकम कब पे चार्ज करिए? आफ्टर द रिटायरमेंट, और इफ़ द पर्सन विल बी एक्सपायर्ड, अगर वो व्यक्ति जो सैलरीड है पर्टिकुलरली कोई एंटरप्राइजेस में, और इफ़ दे हैव डेड, सो दैट इनकम जो उसकी पर्टिकुलरली इनकम है वो किसके और पर्टिकुलरली रेगुलर बेसिस पे उसकी इनकम, उसके अलावा किसको चार्जेबल करी जाएगी? देयर नॉमिनी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है।
नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्कोप है, फिफ्थ स्कोप, जो इनकम टैक्स कवर करता है, जो इनकम टैक्स का प्रॉपर एक्ट कवर करता है, विल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेट ऑफ जो लॉसेस कंपनी इनकर्ड करती है और अब पर्टिकुलरली बिजनेस, सैलरी, ये सब जो इनके इनकम्स और जो पर्टिकुलर नेशन इनकर्ड करता है जिनकी इनकम चार्जेबल, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करता है लॉसेस को इनकर्ड करके, और उनको जो लॉसेस को सेट आउट करके प्रॉफिट को, जो लॉस कंपनी सपोज फॉलो अप कर रहे हैं इनकम के अंडर, तो उनको कैरी फॉरवर्ड करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर्स। सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है रिलेटेड टू जो इनकम चार्ज करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स, तो वो किसके अंडर रेगुलेटेड है, अकॉर्डिंग टू RBI, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। तो इन सारी चीज़ों को इनकम टैक्स एक्ट कवर करता है। सेवेंथ स्कोप क्या है, असिसमेंट प्रोसीजर, के असिसमेंट प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे वेदर वी मेकिंग एंड करंट ईयर का हमें अपना प्रॉपर असिसमेंट करना है, कि करंट ईयर को कैलकुलेट करना है, किसी भी सेक्शन की हेड्स ऑफ इनकम की हमें असिसमेंट ईयर कैलकुलेट करना है, तो उनका इनकम टैक्स एक्ट ने प्रॉपर उनका प्रोसीजर बताया गया है कि कौन कौन सा प्रोसीजर उन्हें फॉलो अप करना पड़ रहा है जब वो इनकम किसी भी रिसोर्सेज, किसी भी हेड्स की इनकम को चार्ज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उनका प्रॉपरली प्रोसीजर दिया गया है कि अगर सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत कर रहे हैं तो उनका प्रोसीजर क्या है, स्टार्टिंग टू एंडिंग उनका प्रोसीजर क्लियरली मेंशन किया गया है, असिसमेंट प्रोसीजर। ओके, एंड द नेक्स्ट कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन एट सोर्सेज, के कलेक्शन करना, रिकवरी करना टैक्स का और डिडक्ट करना अमाउंट, तो ये सारा मेंशन किया गया। TDS को किस तरीके से कलेक्ट करना है, तो ये इनकम टैक्स वहाँ पे उसका यानी कि रेट उनका रेट पर्टिकुलरली बताता है कि टैक्स डिडक्ट से सोर्सेज से किन किन आइटम्स पे कितना टैक्स चार्जेबल करना है, डिडक्ट करना है उन पर्टिकुलरली सोर्सेज के ऊपर। सो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, उनका रिकवर करना प्रॉपरली टाइम टू टाइम, के 1 ईयर में इनका रिकवरी रेट क्या है, उनका कलेक्शन किस तरीके से होगा पर्टिकुलरली सोर्सेज के ऊपर, तो ये सारी इनकम टैक्स के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को कवर अप करता है। नेक्स्टली पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ओके, इफ पर्टिकुलर CC हैव पेमेंट ऑन their टैक्सेस, तो अगर पर्टिकुलर CC अपने दे हैव पेड टैक्सेस, उसने पर्टिकुलर पर्सन ने टैक्स पेड किया गया है, इफ़ दे हैव पेड एडवांस टैक्स, तो उनका जो एडवांस टैक्स है वो हम किस तरीके से उनको दे हैव गिवन, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू दैट। सो ये सारी चीज़ें कवर अप करती हैं। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में कैलकुलेट होगी। अपील्स एंड रिविजन्स ऑल्सो हैव बीन कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। रिफंड, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। रिफंड, पेनल्टी, तो ओके, रिफंड किस तरीके से कितनी मात्रा में यानी कि दिया जाता है, पेनल्टी किन किन पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पे, गुड्स पे और सर्विस पे चार्जेबल होती है, प्रोसिक्यूशंस मतलब किन किन पर्टिकुलरली वेज में प्रोसीजर कौन कौन सा, तो इन सारी चीज़ों को कवर अप करता है। नेक्स्ट स्कोप विल बी rebates and reliefs. What is the meaning of rebates and reliefs? Third will be survey, search and seizure. So इनकम टैक्स सारे पर्टिकुलर आइटम्स को सर्वे करता है, सारे हेड्स ऑफ इनकम को सर्वे करता है, सर्च करता है उनके ऊपर कत सी, अगर किसी को उन्हें सिचुएशन में लगता है कि दैट अमाउंट वी हैव टू सीज, तो उन पर्टिकुलर अमाउंट को वो सीज करता है, जब्त करना, सीज मतलब जब्त करता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें सर्वे होती हैं, कि ये रेट करना, किसी पे रेड मारना, तो ये सारी चीज़ें सर इनकम टैक्स क्या है कि अगर किसी ने पर्टिकुलरली इन्हें डायरेक्ट टैक्स ना पेड करके, टैक्स पेड करके और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स उन्होंने दे हैव टू कलेक्टेड ऑन देयर साइड, तो उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट अपने अब ये दिखाया नहीं है, टैक्स में पेड अप नहीं करा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उन्होंने CC के पास ही है, तो वो अमाउंट को सर्वे करना, सर्च करना, ढूंढना और उस अमाउंट को सीज करके वापस से गवर्नमेंट को सेंड करना। ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, कोड है, सेक्शंस है, तो ये सब मेंशन किए गए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को इनकम टैक्स एक्ट कवर अप करता है, बताता है, लागू करता है, लागू किया है इनकम टैक्स एक्ट ने। नेक्स्टली
14th है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर क्या है, ये पहले भी पॉइंट आ चुका है, रिपीटली ये पॉइंट स्टेटेड है। एंड लास्ट एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, उनको कितना अमाउंट ऑफ एक्वायर्ड करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ एक्वायर्ड। तो इनकम टैक्स एक्ट विल बी कवर ऑल सोर्स ऑफ इनकम विच कैन बी चार्जेस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत चार्जेबल होगा। इन सारी चीज़ों को इनकम टैक्स एक्ट के ये जो स्कोप है, ये स्कोप ये लागू इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के अंतर्गत 1961 में किया गया था, और ये जम्मू एंड कश्मीर में भी फॉलो अप किया जाता है। एंड ये जो एक्ट है, ये सारे इन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखे, ये सारे जो 14 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे, 15 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करता है इनकम टैक्स एक्ट। ओके, in this session we have discussed only that scope, and in next section we have discussed about the components of income tax law. Okay, so now we over that lecture from today, and in next lecture we continue this first our chapter. So for attendance you follow the same procedure, is like this video, subscribe my channel, and in comment box mention your details like your name, your class and your group. Okay, so now thank you to all of you students. Now we move forward to a next lecture. Okay, in next lecture we have covered next point.